this probably would be one of our boldest podcast as well. Yes. But I think it's important, बहुत जरूरी है कि लोग खुल के बात करें और Yes. ब्रांड के लिए कोई एम्बेसडर चूज करना हो फ्रॉम Hmm. फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, लेट्स से, Hmm. or from, you can give me multiple names, but sports industry or film industry, who do you think that will be? Okay. So, um, most of the Indian viewers of porn are in tier 3 and tier 2. Okay. Okay. And from there, we think that they are not aware, but they are much more aware than urban cities and metro cities out there. Which ones are your top products, like top three, top Top five? selling, एक तो the range for sachets was also featured in the movie called Thank You for Coming. बता रहे थे तो मुझे वापस से मेरे वो 11-12 के टाइम पे जो हम Hmm. लोग सेक्स एजुकेशन मिला था. आई थिंक दैट इज द राइट एज, क्योंकि सब लोग दे आर गोइंग फ्रॉम बॉयज टू मैन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. Absolutely. Hmm. और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थे मास्टरबेशन को लेके. पीपल वर, क्योंकि यही सब है ना कि अरे इससे ये होता है, ये तो तुम्हारी मेंटल बीमारी है. बहुत Hmm. लोग क्या. Ladies and gentlemen, भाइयों और बहनों, we are back once again. This is your host MC Adi, and we have a new guest on the show. The guest for today is Miss Aishwarya Dua. Give it up for Aishwarya. Thank you, Ash, Thank you, for my coming. friend. Thank you for joining us. Really appreciate it. It's a pleasure. I know I've been in touch with you since a while. Yeah. I've been seeing you as an entrepreneur. देख रहा हूँ आप कैसे ग्रो कर रही हैं लाइफ में, और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखते हुए. और आज तो बहुत ही Thank खुश you. हूँ कि आज हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकी. सो थैंक यू Thank वंस. you so much. और Thank you so much for having me today. थैंक यू. सो ऑलराइट गाइस, आप लोगों को मैं बताता हूँ ऐश के बारे में. मैं उन्हें ऐश बुलाता हूँ बिकॉज हम लोग दोस्त भी हैं एक तरह से. बट हर नेम ऑफ कोर्स इज ऐश्वर्या दुआ. Aishwarya is a founder and CEO of a company called Sassiest, right? जिन लोगों को Sassiest के बारे में नहीं पता है, please go to Google, search for it and see what it is. Of course, Ash हमें बताएंगी भी कि Sassiest क्या करता है. But yes, she is an entrepreneur. Sassiest की founder हैं. इंडिया की पहली डॉक्टर बेस्ड sexual wellness and pleasure brand for women and the LGBTQIA plus community. So that's what Sassiest is. ऐश्वर्या एक IIM बैंगलोर एलुमनस हैं और एक मिशन पे हैं गाइस. मिशन ये है कि सेक्सुअल हेल्थ और सेक्सुअल प्लेजर से रिलेटेड महिलाओं की आवाज, विमेन, वॉइस ऑफ विमेन शुड नॉट बी काइंड ऑफ पुट डाउन, और दबाई नहीं जाए, जज नहीं की जाए, और ओपनली उसके बारे में बात की जाए. सो दैट्स हर मिशन. उसके बारे में भी आज हम और जानेंगे. बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं ऐश को. रिसेंटली सैसिस्ट को एक अवार्ड मिला है, डिजिटल विमेन अवार्ड इन disruption category. Ash has been featured in Forbes, in Your Story, in The Print, The Hindu, and many more places. So we have an amazing guest, guys. This is the best time for us to learn from her journey and understand how we can inculcate some amazing things from her life, right? So thank you, Ash, once again. Really happy to have you here. Did I miss anything? अगर कुछ मिस किया है तो please add or explain whatever. नहीं, कुछ मिस तो नहीं किया है, बट हाँ, जो आपने मिशन बोला, दैट आई वांट women ऑफ दिस कंट्री टू नॉट शाई अवे फ्रॉम देयर सेक्सुअल हेल्थ एंड द प्लेजर नीड्स. मैं चाहती हूँ कि वो खुल के एक डॉक्टर से अपने प्लेजर और हेल्थ के बारे में बात कर सकें, और सिर्फ पीरियड्स और प्रेगनेंसी को छोड़ के जो और बातें हैं उनके बारे में भी बात कर सकें. क्योंकि स्कूल में आई गेस सिर्फ हमें पीरियड्स के बारे में ज्यादा सिखाया गया है, Correct. और आदमियों को खास कभी कभी कुछ बताया ही नहीं गया कि एक फीमेल की नीड्स क्या होती हैं. True, true. और उसमें किसी भी जेंडर की कोई कोई भी गलती नहीं Right. है. तो आई गेस that's where we come in, where we want to educate. We want to give the platform which is safe for women and LGBTQ, and where one is not only looking forward for the health
मतलब वो like products, but also having the products for pleasure, which is backed by doctors itself. So what जो भी हम बेचते हैं वो एक डॉक्टर्स के अंडरस्टैंडिंग के थ्रू बाहर आता है, और एक Okay. फीमेल एनाटॉमी को ध्यान में रखते हुए वो चीजें बनाई जाती हैं। Oh, really? चाहे वो एक प्लेजर मसाजर हो, या फिर चाहे वो एक ल्यूब्रिकेंट हो, चाहे वो इंटीमेट वॉशेस हो, या चाहे वो आने वाली कोई भी कैटेगरी जो भी हम एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, कुछ भी हो, वो सब एक डॉक्टर्स के गाइडेंस के थ्रू ही हम लोगों तक लेकर आ पाएंगे। Wow. I'm sure I have a lot of questions. I'll ask you many more questions. Just श्योर। एक चीज I wanted to share with you क्योंकि I know इंडिया में sex education is not very common. हम्म। I was very lucky कि मैं छोटे गांव जगह से हूँ, small town boy, but I was in St. Paul's and luckily during that time, I mean, what 96 97 हम लोगों को एक सिस्टर आई थी और उन्होंने 2 दिन तक हम्म। हमारी एक सेक्स एजुकेशन की क्लास ली थी. आई क्या वाज बात है, आई वाज कहाँ इन से हैं आप? 11th. दिस वाज इन सिटी कॉल्ड बांसवाड़ा इन राजस्थान. अच्छा। अच्छा, ओके। तो ओके। मतलब सरप्राइजिंग लगता है आज जब मैं बाहर निकला हूँ और देखता हूँ बड़ी बड़ी बिल्कुल। सिटीज में बच्चों को ये एजुकेशन नहीं मिली थी, बट आई थिंक आई वाज वेरी लकी. और हम सब लड़के लड़कियां साथ में बैठ के हम लोगों ने वो क्लास ली था. ऐसा नहीं था कि लड़कों के लिए अलग है, लड़के ऑल ऑफ अस वर सिटिंग टुगेदर. आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस। या एंड शी वाज या। आंसरिंग क्वेश्चंस लाइक किसी ने पूछा प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना चाहिए या नहीं. हम्म। So like it was so amazing, right? At such a young age, यस। these questions यस। are getting asked. हम्म। कोई पूछ रहा है कि लड़कियों के पीरियड्स का क्या है, कैसे सब लोग अपने अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. गुड थिंग हम्म। उन्होंने ये करा कि किसी को बोला नहीं क्या वर्बली पूछो, बिकॉज शर्माते हैं लोग, तो सबने चिट्स पे या। लिखे थे क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चन अच्छा। थे. और वो फिर एक गुड। बोल में डाल दिया था और शी वाज जस्ट पिकिंग अप एंड आंसरिंग. शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस. एनोनिमस हो गया होगा वो। अनोनिमस, यस. तो किसी को परफेक्ट। पता नहीं चला कि किसने पूछा, लेकिन किसने पूछा? सबके दिमाग में होते हैं ये सब क्वेश्चंस, राइट? और जी। तो जी। आप जो कर रहे हो ना, वो इसीलिए भी कहीं मेरे दिल के थोड़ा करीब है, क्योंकि मुझे लगता हम्म। है कि it's not easy, especially in a country like India. In fact, lot of other countries also, even developed countries, it's not यस। something which is very easy. So यस। I think hats off to you, Ash, and I think I've said this to you enough number of times earlier as well, but really really या। amazing. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले ये जानते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही. आप, आई नो कि आपने बहुत ही छोटी उम्र में 27 की एज में आई थिंक आपने शुरू कर दिया था सैसियस्ट. हम्म। और आई डोंट नो कैसे दिमाग में आया, कैसे इतना बोल्ड स्टेप लिया कि समथिंग हम्म। रिलेटेड टू सेक्सुअल वेलनेस तक भी ठीक है, बट सेक्सुअल प्लेजर इज अ वेरी डिफरेंट कैटेगरी. हम्म। इंडिया में तो लोग बिल्कुल। हो करने लग जाते हैं. सो हम्म। हम्म। तो आई एम श्योर आपको आपका अपब्रिंगिंग भी एक उस तरह से हुआ होगा कि शायद आप बहुत ही ओपन माइंडेड रहे, और आपके फ्रेंड सर्कल कुछ ऐसा होगा, वट एवर. सो हम जानना चाहते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ, उसके पहले भी कुछ और किया था या डायरेक्टली आपने सैसियस्ट ही शुरू किया. प्लीज शेयर विद अस. नहीं नहीं, दिस इज माय सेकंड स्टार्टअप। एक अच्छा. इससे पहले 4 साल बोल सकते हैं डबल एमबीए किया है मैंने। ओके. ओके. It has been a startup for 4 years, and grinded myself, hustled through those four years, and understood about market services, consumer insights a lot in depth. How to bring technology in the business and how to expand through it. So वो सब चीजें बहुत सारी सीखी. um, मैं उससे ये नहीं बोलूंगी that I failed that startup. I feel that I bought myself from 0 to 1 at least. This करेक्ट. is what I have done, if not करेक्ट. business. Now the एब्सोल्युटली. target is to take it to 0 to 1 and scale from there as well. Um, if you ask me why I started this, was the reason was very personal to me. बहुत कुछ personal था. And I was into a relationship which was physically and mentally abusive. ओ. Hence, when I was going through that lag of sexual dissatisfaction in my life, plus mental health issues, plus my startup going into failure, and a lot of पूरी life यहाँ से वहाँ हो जाती है, and then you don't know what to do. I was trying to find out a psychologist for me, with whom I can speak and talk out and understand how to handle my life. But then I
found one psychiatrist who tried to give me like medicine to calm me down. हम्म। बट देन कभी बचपन में कहीं सुना होगा कि दवाइयां सही नहीं होती हैं इतनी जल्दी। राइट। राइट। जब तो वो एक अवेयरनेस हमेशा से थी कि ये सही नहीं है। तो जब मैं उस फेज से खुद निकली तो मैंने कहा अगर मैं हूं तो मतलब और भी लोग हैं, बहुत सारी औरतें हैं, वो बहुत सारी मतलब अनगिनत। हम्म। क्योंकि एक फाउंडर का दिमाग वैसे ही चलता है, आप एक एक बार एक उस जगह आ जाते हो तो आपको पता होता है वो ऑडियंस कितनी बड़ी है, वो कितना बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आई राइट। गेस दैट्स हाउ आई थॉट एंड आई वांटेड टू आल्सो पिवट इन माय लाइफ इन टर्म्स ऑफ व्हाट टू डू नेक्स्ट। um Sexual wellness was, I was comfortable with this topic because I guess this is from my mother. It's like she has been my friend, I can talk to her about anything. I can talk to her about my boyfriend, if I want to marry somebody, if I like that person, if that person ditched me, or I don't know what not. I can talk to her about anything calmly. मुझे कभी उन्होंने ऐसा फील नहीं होने दिया है कि वो मेरी माँ है या फिर राइट। मैं उनसे एक बाउंड्री मेंटेन करके बात करूं। यस, सो इज्जत अपनी नाइस। जगह है, एथिक्स अपनी जगह है, लेकिन बात करना है अगर उनसे किसी हम्म। अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम के बारे में, तो उन्होंने मुझे हमेशा खुला छोड़ा है। तो लोगों की, लड़कियों की लाइफ में ऐसा होता है जब पहली बारी पीरियड्स होते हैं तो लड़कियां रोती हैं ज्यादातर। राइट। मैं घर पे हंसती हंसती आई थी बिकॉज ओ। मेरी मॉम ने मुझे उतना ही कंफर्टेबल किया हुआ था कि ये हो गया तो मतलब तू बड़ी हो गई। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी द बिग गर्ल इन माय लाइफ, इन माय ओके। हाउस, आउटसाइड द वर्ल्ड। Always wanted that, attention from the world out there. Okay, I exist. Okay, I'm the girl out there. It's that. So I guess I was brought up well in terms या। of in my mindset करेक्ट। that I can do whatever I want to. I don't have to seek any sort of validation from anybody if I want to pursue something. That's what my mom has given me in my life. So that's why I guess. So in my this startup also, she invested her last FD on me because I told her that I don't want any girl हम्म। to fall for somebody without knowing what she wants in her life. ओके। So if it's about sex as well, sex tells you a lot about yourself. करेक्ट। So when you love yourself, when you love your body, when you know how you move, how you are with your mind, your body, I guess you know what kind of a person you want in your life. You don't fall for anything that's not for you, that's not meant for you. So I guess that's where she said, okay, cool. If you are, अगर तुम्हें इंडिया के लिए, वो बहुत बड़ी भारत भक्त हैं, अगर अच्छा। तुम्हें इंडिया के लिए कुछ करना है, औरतों की सेफ्टी के लिए कुछ करना है, औरतों की मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के लिए कुछ करना है, तो करो, मैं तुम्हारे साथ। वाओ। इट हैज बीन अमेजिंग। दैट। हेड्स ऑफ टू योर मॉम। या, हैट्स ऑफ टू हर। दैट्स व्हाई आई एम। ऑसम या। यार, अमेजिंग। यस। ओके। सो अगर बात करें अभी सैसिएस्ट के बारे में, हम्म। सबसे पहले तो नाम कैसे आया? हाउ डिड यू हम्म। थिंक ऑफ द नेम? हम्म। और अब, क्योंकि हमारे बहुत सारे यूजर्स हैं जिनको शायद अभी भी नहीं पता होगा सैसिएस्ट का, सो व्हाई डोंट यू टेल देम व्हाट इज सैसिएस्ट, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग दैट यू वांट टू टॉक अबाउट सैसिएस्ट? सो सैसिस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक औरत और एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोगों को प्लेजर, हेल्थ और हाइजीन के वो लाइक प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। साथ में डॉक्टर्स के द्वारा कंसल्टेशंस भी दी जाती हैं अबाउट ओके। देयर लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्लेजर, रिलेशनशिप काउंसलिंग if need be. So we cover all that area of life where they feel stuck and can't find the safe space to talk about their sexual life all over. From periods to menopause, in like between, you can say that women who have gone through pregnancy and facing postpartum depression, for example, they can also come and find a solution to restart their sexual lives. Also, for example, women are going through painful sex or vaginismus and can't have sex with their partners, they can come to us and find out the solution in terms of health and pleasure, both. ओके। This is what Sassist is. एंड अबाउट द नेम, हाउ डिड यू गेट दैट? Name, नेम बस ऐसे ही था यार कि
सैसियस का मतलब अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा एक बहुत ही लड़की दैट शी वांट्स टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। समटाइम्स उसको एक वर्ड भी दिया जाता है विच इज शेमलेस। ओ, उसका एक सिनोनियम होता है केयर फ्री। राइट। तो मेरा ये मतलब था कि अगर कोई भी लड़की अपने बारे में सोच रही है और अपने बारे में सोचने की हिम्मत कर रही है आफ्टर whatever has happened in India and whatever is happening in terms of patriarchy and feminism as well, because I'll be neutral in this Hmm. aspect because we are seeing a Good. lot of stories from both ends. Good to know that. Now, in Yes. these, yeah, in this terms, that somebody is daring enough to take care of herself and not pointing out any gender, but to take care of herself and normal, she's a carefree woman, Hmm. and Sassius would love to support that woman. And if somebody is not, we would love to try changing the mindset as much as we can. We are not here for next 3 years or 5 years or Right. you. It's a business which belongs to my heart and my soul. It will run through the times till I exist in this world and beyond that. So it's that. It's like it will keep evolving as per how India is like changing, how Right. mindset is evolving, and we'll be the part of this entire nurturing in India so far. I guess it's that. It's that business which helps you be carefree in your life. Lovely, lovely. I can't send more best wishes to you than possible. Shukriya. Really wish कि आपका बिजनेस और आपका जो मिशन है Yeah. वो बहुत आगे बढ़े और नॉट जस्ट Yeah. इंडिया बट और भी पूरी दुनिया में जहां पे Global. भी जरूरत जितना है जितना जा सके. जा सके जाए, Yes. न सिर्फ आपके लाइफ टाइम में बट इवन आफ्टरवर्ड्स. सो Yes, even afterwards. यस, लेट्स that's my pray and wishes to you. Yes. सो अगर हम बात करें कि सैसियस्ट के, एंड आई थिंक ये थोड़ा इंटरेस्टिंग इंसाइट्स भी हो सकता है क्योंकि Hmm. जनरली इंडिया बहुत ही एक अपने आप को ट्रेडिशनल कल्चरल कंट्री दिखाना चाहता है, Mm-hmm. बट एज फार एज आई नो it's not part of your industry, but it's also just a fact that it's amongst the top 3 porn capital of the world, right? so Hmm. so while there are things happening outside of the door, there are a lot of other things happening inside the doors, the Inside closed the door. ones. Mhm. तो Mhm. आपके बिजनेस के थ्रू ऐसी कौन सी कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आपको भी पता चले हों या रिवील हुए हों कि ये हमारे टॉप 3 प्रोडक्ट्स हैं जो हमने शायद सोचे भी नहीं थे, Mhm. ये हमारी टारगेट कैटेगरी है जो हमने सोची ही नहीं थी कि टीयर 3 से आएगी, ऐसा कुछ बताइए आप बिजनेस के बारे में. Mhm. So, when it comes to category, I guess what I didn't thought was that tier three, tier two will bring one of the major interest in the entire cohort of Sassiest, Really? right? Why? Because as you're talking about porn industry out there, um, most of the Indian viewers of porn are in tier three and tier two. Okay. Okay. And from there, we think that they are not aware, but they are much more aware than urban cities and metro cities out there in the urban India. Okay. The aspect which I understood more was that India is a value centric market. We all know about that. Right. When Right. it comes to selling anything in India, it's not always about the amount of that thing. Obviously, that matters in terms of the competitive market. It's up to you how you place yourself. I will always say that do not sell for less by seeing other competitors out there. Otherwise, you will lose yourself as a brand. This Hmm. is what we do not do. um, we want to exist in the market for long, hence we stay ourselves, because in the race with other competition you might lose your sanity in the business which you want to build for last. So I guess Right. that hampers. But when it comes to what India wants really a value product out there, a value service out there, and they're ready to pay for it also if you know how to sell rightfully Okay. to So the right consumer. So again, coming back to, let's say, which ones are your top products, like top 3, top टॉप 5? सेलिंग एक तो लेडी लाइक है, आई गेस.
that is one of the massagers that I have sold to more than 10,000 women so far. And it's like women love it because it's very sleek, comfortable, long. It is also helping women to solve painful sex issues under the guidance of doctors. Oh. That's where pleasure meets health for Hmm. Sassiest. Hmm. And that's what our tagline as well that we follow. And women who are looking for pleasure plus health, that's what Sassiest is. So, number one is Ladylike, second one is within my hand, which is Monroe's. Okay. It is designed in a way you will see a closed drawers in the market, but this is blown, and this is made in a way that when you put it on your vulva, it will never hurt you because your vulva skin will go inside this, Okay. inside the petals that you see, and Okay. you can go hands free. Okay. So this is the science behind this rose. And whenever any female use it, she knows that I can be myself with this one because I know that this clit suction toy will never give me any pain. Right. Right. That's how, like, anatomy based things we get out there. Then there is a lubricant which is dermatologically tested. um वो ऐसा फॉर्मूला है, मतलब मैं सच बताऊं तो बनाते बनाते हमें भी नहीं पता कि हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे. इट इज मल्टीपल हिट्स एंड ट्रायल्स की बाबा, लेट्स डू दिस, एक बार ट्राई करते हैं कि मेसी ना रहे, व्हाट वी कैन डू अबाउट इट. सो इट वाज माय लास्ट ट्रायल की ठीक है मेसी ना करते करते एक बार और ट्राई करते हैं, वरना Hmm. इसी लास्ट सेकंड लास्ट सैंपल पे भी हम लोग रुक जाएंगे, Hmm. बिकॉज अदरवाइज वी हैव अचीव्ड एवरीथिंग एल्स. Okay. But then it went and came back, and you will not believe now the lubricant that we have, if you put it in your hand and when you rub it, only then it will be fine. अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, अपने आप evaporate हो जाएगा. It's water based, and you Okay. will not feel messy after using that lubricant Ah, as you feel with other lubricants out there. So I correct. guess that's there. And then there is intimate washes loved by Okay. men and women and them, Okay. LGBTQ. Um, I mean, there are repeat customers for it just on the basis of that, hey, this is the first time I loved any intimate wash out there. I didn't know that it really doesn't give me itching after that. These kind of feedbacks. So जब इस तरह के feedbacks आते हैं, then it keeps you motivated, then you want to bring something else, and then आप और भी बहुत कुछ करना चाहते हो. And I guess that's what Sassyet stands for. Whatever we launch has to bring us something good. Otherwise, we discontinue it. Lovely. I'm so Yeah. happy you are. Honestly, this probably would be one of our boldest podcast as well. Um, Yes. but I think it's important. बहुत जरूरी है कि लोग खुल के बात करें Yes. और Yes. समझें कि ये कोई ऐसा टैबू नहीं है कि हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिन चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं उन्हीं चीजों में गलतियां करते हैं, और उन्हीं चीजों के बारे में आई थिंक ख्याल भी कुछ और ही दिमाग में आ जाते हैं जो जनरली जरूरी नहीं है लाइफ में. सो आई एम वेरी हैप्पी. I'll tell you one insight also. This Monrose I have sold to a 55-year-old lady in ओह वाह. a event, offline event in Mumbai. ओके. And that cell has been very close to my heart when I say this, because there was her daughter, her husband standing by her because they रियली. knew that this is the thing that she needs in her life. वाह. एंड उन्हें लगा मैं इसका 599 का प्राइस बोल रही हूँ, मैं उन्हें ऑफर करने वाली थी, लाइक डिस्काउंट, लाइक 25% ऑफर मैं करने ही वाली थी. हम्म. बट आंटी को लगा मैं 599 बोल रही हूँ एमआरपी, इट वाज 5,999. ओके. ओके. एंड आंटी बोली नहीं नहीं, ये तो बहुत महंगा है, बहुत महंगा है. मैंने कहा नहीं आंटी, मैं आपको ऑफर दे. उस जैसे ही मैं बोल रही थी, उनके हस्बैंड सामने से आते हैं एंड ही सेड दैट कितने का है मुझे बताओ. मैंने कहा अंकल 5,999. उन्होंने 6,000 रुपये हाथ में निकाले, मुझे दे दिए. वाह. ये रखो, मेरे पैक कर दो. मैंने कहा वाह. ठीक है. और वो वो इट हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट सेल्स ऑफ माय लाइफ. एंड आई टेल यू दैट एक और चीज है, हम बोलते हैं कि टैबू है, टैबू है. एक्चुअली सेक्स टैबू उनके हमारे लिए इसलिए बन गया क्योंकि हमें कभी बात करना ही नहीं आया. एग्जैक्टली. हमारे पेरेंट्स को यही बताना नहीं आया कि इस बारे में बात कैसे करनी है, इसीलिए करेक्ट. वो छी बन गया. करेक्ट. राइट. अदरवाइज अगर आप अब मेरी मम्मी से या फिर किसी भी एक बड़े इंसान से आज जाके बात करेंगे और आपके पास वर्ड्स है बात करने के लिए, तो वो आपको उन्हीं वर्ड्स में जवाब भी देंगे, बिकॉज आप उन्हें बात करने के लिए लय दे रहे हो.
राइट, पहले उनके पास में शब्द ही नहीं थे। आप करेक्ट, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? उनको उनके उनके बड़ों ने कभी बताया ही नहीं कि आप सेक्स के बारे में किस तरह से कितनी इज्जत के साथ भी बात कर सकते हो। राइट, तो राइट। सैसेस का एक एम यही रहता है कि हम लोग इंडिया की भाषा में ही बात करना चाहते हैं। वी टॉक एज इंडिया वांट्स टू लिसन। हम्म, दिस इज हाउ वी वांट टू टॉक एंड दैट दिस इज व्हाई वी वांट टू स्टिक बाय विद इंडिया इन टर्म्स ऑफ यस, हम कपड़े पहनाकर बात कर लेते हैं, कपड़े उतार कर नहीं। राइट। दिस इज व्हाट आई गेस सैसेट स्टैंड्स फॉर। It's giving me goosebumps, Ash. I'm really जी enjoying this conversation. So, I think that was my next question actually कि इतने सारे आप लोगों ने प्रोडक्ट्स बेचे होंगे और लोगों को रीच हम्म किया है. हम्म um, एक इंसिडेंट तो आपने ऑलरेडी बता दिया, विच वाज जी अमेजिंग. एनी अदर सच इंसिडेंट्स जहां उसमें से कोई एक या दो जो आपको याद आ रहे हैं अभी, जहां आपको बिल्कुल। लगा कि यार ये तो मतलब गजब ही हो गया, दैट आई एम एबल टू डू एज अ फाउंडर, या मेरा I बिजनेस. don't think I am able to do, but I'll tell you one incident. It's the team efforts. हम्म. मेरा काम था एक ब्रांड को एक जगह पे लेकर आना। अब मेरा काम है इस विजन को मेंटेन करना एज अ सीईओ, फ्रैंकली स्पीकिंग, and keep working on the team who is the right person, who is not the right person, taking right action on the right time. That if this person is not fine, then probably find another person. This is what my job is now. करेक्ट. And but in terms of, I'll tell you what my team achieved in that front because I'm a very customer hungry person. मतलब मेरे को हम्म. चाहिए होता है कि भाई क्या प्रॉब्लम हुई मुझे बताओ। मैं हर महीने 25 लोगों को कॉल करती हूँ, अच्छा, समझती हूँ कि उन्हें क्या पसंद नहीं आया, क्या पसंद आया। अच्छा. नहीं आया तो मैं चेंज कर देती हूँ, कोई बात नहीं, 6 महीने हो गए ना, फिर से मुझसे एक और चीज ले जाओ। लॉस हो गया मेरा, कोई बात नहीं, बट दैट पर्सन विल कम बैक टू मी। करेक्ट. So this is what I do. And then one of the incident happened. There was this lady. She gave birth to a child. 5 साल हो गए थे उनके हस्बैंड के साथ में सेक्स नहीं हुआ था 5 साल, ओ. 5 साढ़े 5 साल। शी सॉ और एड, हमने ना एक पेनफुल सेक्स का एड डाला था वैजिनिस्मस का, बिकॉज हम बहुत ज्यादा एड भी नहीं कर सकते हैं कुछ हाँ, चीजों के बारे में, बिकॉज मेटा दैट्स फ्लैग करता है। करेक्ट. तो हम लोग ऐसे ही ट्रायल कर रहे थे तो टू गेट सम लीड्स एंड शी केम टू अस एंड शी वाज लाइक, मैंने सोचा मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ, आपका प्लेटफॉर्म दिखा और मेरे साथ ऐसा ऐसा सीन है कि 5 साल हो गए हैं और मैं अपने हस्बैंड के क्लोज नहीं आई हूँ। हम्म. आप मेरे को थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो बिकॉज मुझे पता नहीं है क्या करना है एंड मेरे रिश्ते में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई है। ओके. तो आई स्पोक टू हर लॉट कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देन आई डिस्कस विद द डॉक्टर्स वी हैव ऑन द पैनल एंड my doctors literally handled that situation. And after that, I guess now she's planning another baby right now, if I'm not wrong. There's a life that she started. Now she's planning another baby, and now she knows how to navigate her life after giving a birth and postpartum depression. If might be there, if not, then if there is a Yeah, painful sex issue, she knows what to do, how to handle herself. So I guess this is how we have impacted lives out there, and people have allowed us to impact their life. This is another thing. ट्रू. सो वी आर लकी देयर कि या, हम क्या कर सकते हैं यार, आपने एज अ कंज्यूमर हमको चूज करा, हम आपकी हेल्प राइट. कर पाए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट वी कैन डू फॉर यू। सो आई गेस इट्स पीपल हु आर मेकिंग अस एवरी सिंगल डे। आई एग्री. इट्स दैट। आई कंप्लीटली यस। अंडरस्टैंड एंड आई थिंक दिस इज रियली अमेजिंग. अगर एड्स की बात करें ना, मैं हम्म पूछने वाला था क्योंकि अगेन बिकॉज द अपना प्रोडक्ट कुछ ऐसा है कि उसको हम्म कैसे प्रेजेंट करें, कैसे, देयर इज ऑलवेज अ थिन लाइन, देयर आर सो मेनी या रेगुलेशंस. हम्म ऊपर से सोशल मीडिया और गूगल, उनके अपने रूल्स हैं. uh, हम्म तो हाउ डू यू एंड योर टीम मैनेज प्रमोशंस एंड मार्केटिंग हम्म दैट ये सही लोगों तक पहुंच भी जाए, सही मैसेज भी पहुंच जाए, और हम्म कुछ रेगुलेटरी इश्यूज में भी प्रॉब्लम ना आए. So I guess we have understood how to manage that because again, as I say that we are a doctor back brand. So for us, Hmm. sometimes it becomes easier, sometimes it's difficult to talk about the problems to people. But with the help of education that is there constantly on social media channels, that is one. Through like podcasts like yours, and I'm grateful to be here. That I'm able to pass this to the world out Yeah. there.
offline events, and quick commerce. That has been one of the biggest channels for us as well to Okay. spread the information out there. And Meta, yes, kabhi kabar problems hoti hain, but now after being 3.5 years into the industry, we kind of know that how to handle that like situation out as well. So I guess that is manageable. ऐसा नहीं, शुरू शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, जो Hmm. ऐड करो वो बंद, जो One. ऐड करो वो बंद, मतलब आप नहीं कर सकते हो कुछ, but then we Correct. figured out ways, and education really helped us a lot. Yeah. When you say education helped us, what does that mean? Educating. In terms of educating through social media channels to people Okay. about sexual health and pleasure and needs, and why doctors are speaking about it now. That has been a bigger picture, because when doctors say something, you hear, Hmm. you listen. Correct. 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 And if a normal influencer gonna come up and say something, probably you'll be like, okay, chill, 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 ठीक है, ये तो बेच रहे हैं, Ah, right? right. We as a brand, we don't directly sell every time. For us, there is a channel like quick commerce for that, right? But when it comes to Sassiest and on a D2C front or on a channel front or on website, we kind of educate more than we sell, like, oh, buy this massager from us. Hmm. If I'll go on road also, I would rather tell the USP of that product on the basis of which I'm able to sell it. Yeah, but you're not buying a massager. You're buying a self-help tool for yourself to be happy. Can you please try it once? Hmm. Can you And please trust me once and give it back to me if you're not liking it? My okay. recent channel is all about it. The recent ads are also about that. Love it or give it back to us. Okay. That's amazing. But how do Yeah. you manage it if a used product? I know it will not gonna come back. Okay. Okay. I know That's that. the confidence. And if it gonna come back, I am gonna educate that person. Hmm. Tell me what's the problem. And that's an opportunity for me to speak to a consumer. Why not? Right. Right. Probably I'm wrong somewhere, and that's the job of a founder to Right. understand what's wrong in your selling. How will I get to know that? If I'm gonna push sales out there drastically, I'm like, अच्छा बेचो भाई, 60% ऑफ में बेचो, 70 में बेचो. ऐसे businesses आप नहीं बढ़ा सकते. I'm sorry. Correct. You Correct. probably can scale to 5 years, and then you are again a lost brand because you're Hmm. like scaling down the operations, because you have made a lot of loss in the future, like in the past, and the future will take time to recover that loss. I would rather go slow a bit, and I'm like, please slow down, babe. Calm down. What's the matter? First, understand the consumer in depth. And in sexual wellness category, you won't believe, a consumer mindset is changing constantly. It's evolving. You have to be along with them because this is very new Yeah. to everybody out there. Yeah. आज कुछ और कोई सोच रहा है, कल कुछ, यार एक बार ट्राई कर लेते ना, क्या है? फिर ट्राई कर लिया, और अब फ्रेंड को ही बता ही देती हूँ ना यार. अच्छा, मुझे उससे पता चला क्या था, अब आप मुझे एक बार प्लीज हेल्प करोगे? Hmm. यार मेरे को ना, मैंने आपसे एक मसाजर पहले लिया था, क्या आप, आई नाउ वांट टू गिफ्ट इट टू माय फ्रेंड, कैन यू प्लीज पैक इट फॉर मी एंड राइट दिस फॉर मी? डू यू थिंक दिस विल बी गुड फॉर माय फ्रेंड बिकॉज शी इज मैरिड, 4 years हो गए हैं? Hmm. सो ऑल दीज कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती हैं, फिर बात होना. दैट Lovely. इज वेयर द इवोल्यूशन इज हैपनिंग, एंड पीपल आर स्टार्टेड टॉकिंग इन देयर हाउसेस. Lovely. Lovely. Yeah. I think it's amazing to know that हम उस तरफ जा रहे हैं और या. आई थिंक ओपन हो रहे हैं इन सब चीजों के लिए. आई थिंक दैट्स रियली अमेजिंग. जस्ट बिकॉज मैं मार्केटर भी हूँ. एक और चीज जो मुझे जानने का बड़ा मन कर रहा है कि आपका अभी तक के सारे प्रमोशंस में और एड्स में सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग कौन सा रहा है जिसने आपको सबसे अच्छा सोटू से रिजल्ट दिया है या अवेयरनेस दी है? यार हमने एक कैंपेन किया था, फाउंडर कैंपेन, इन विच वी वर स्पीकिंग अबाउट pleasure is power, pleasure is health. ओके. That has done pretty well for us in terms of founders holding the products in their hands and doing that campaign in a silver long boyfriend shirt out there, and trying to show how confident, not trying, actually, we are, how confident we are holding the massagers that we sell, हम्म. and without obscenity, how can we speak about sex and health? I guess that changed a lot of things. And then, because of Karishma, she's my co-founder and a part of Bollywood Hi since Karishma, I was just 2020. saying Since hi to yes, her. she is.
one of the best like decisions for Sassiest, I think. Um, she she has held my hand in the toughest of the toughest times, what one co-founder should be doing. And you can say that we are married to each other in business. It's that. So yeah, I mean that campaign did well, and that's entire Karishma's work. And because of her, we were also the range for Sashes was also featured in the movie called Thank You for Coming. Yeah, 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 I remember that. Yes. Yeah, yeah. So there was a 10-second feature of the range, the movie as well. So that also gave push because we are the only people who are selling these shaped massagers in the country. So I guess that also gave us push there. That happened. A Okay. lot of customers came to us. Oh, I have this. I tried this. Oh, I saw this in my friend's house. I'm like, thank you so much. This is the best thing that I can hear right now. Yeah. So yeah, yeah. Word of mouth. Yes, word of mouth. So why don't you tell us a little bit about your co-founder also? What does she do, Karishma? What is her background? Karishma again. So as I said that she is a choreographer and like a director in Bollywood since last Okay. 22 years now, and Okay. she has worked with, you can call out names like from Amitabh Bachchan to Shah Rukh Khan to like Ranveer Singh to Ranveer Kapoor to Deepika Padukone to Katrina Kaif to I don't know who not. Okay. So मतलब मैं अभी बोलते रह जाऊंगी और वो नाम खत्म नहीं होंगे. Um, Okay. it's that, and she has worked with brands like Fiamma, Wheat, um, Maybelline. So she has the knack of how to put brand out there in front of the consumer. Right. If I have consumer insights, if I have business knowledge, she has knack to put it out there. If I have some ideas, she knows how to put it out there. She's a big time executor of that front. And Okay. I look into operations, she look into marketing, and that's how we kind of gel up. Yeah, that's what she is, one of the major pillars for Sassy West. Cool. Lovely. This is just a hi to Karishma, and hopefully we will invite you as well sometime soon. Yes, yes. Um, so coming back to the questions that I was thinking about, and you were talking about डॉक्टर बैग्ड प्रोडक्ट्स जो भी हम लोग यू नो प्रोडक्ट्स हैं या कंसल्टेशंस हैं या जो भी क्वेरीज हैं लोगों की Hmm. देर इज उसके पीछे एक पढ़ा लिखा समझदार एक डॉक्टर है जो लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर रहे हैं सो वन इज ऐसी आप फनी भी बता सकते हैं मतलब आई एम श्योर कोई ऐसी फनी क्वेरीज आई हो जो जिसको जो थोड़ी फनी लगे बट एनी इंटरेस्टिंग क्वेरीज दैट यू फील कि या तो ये सबसे ज्यादा आती है सबसे ज्यादा लोग यही Hmm. पूछ रहे हैं Hmm. एनीथिंग ऑन दैट फ्रंट यार इन हेल्थ केयर फ्रंट सबसे ज्यादा क्वेरीज तो फ्रैंकली पेनफुल सेक्स के बारे में आती हैं. ओ रियली um, उसके साथ साथ यूटीआई के बारे में तो बहुत आती है, लेकिन वो कंबाइन हो जाती हैं बिकॉज यूटीआई जब होता है, जब उसका इन्फेक्शन होता है तभी भी काफी ज्यादा पेन होता है. सो समटाइम्स women डोंट अंडरस्टैंड इफ इट्स यूटीआई और पेनफुल सेक्स, सो वो भी एक इशू है. um, और और आता है कि मसाजर को यूज कैसे करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज. तो उसके लिए भी एक दे कैन बुक अ कंसल्टेशन विद अस, दैट्स व्हाट वी डू. एंड फनी तो यार इतनी फनी है कि मतलब मास्टरबेट करना हार्मफुल होता है क्या, मैं मतलब अगर मैं दिन में 2 बार ही करूं तो क्या मतलब मेरे को कुछ हो जाएगा. मास्टरबेशन कैंसरस तो नहीं होता है. ओ मैंने रियली कहा ये कैसा सवाल है, मैं इसका क्या करूं. तो आप मास्टरबेट करते हो तो आप इसके एडिक्टेड हो जाते हो क्या. अब आप किसी भी चीज को अगर ज्यादा करेंगे, हर करेक्ट चीज का ज्यादा करना भी ठीक नहीं है. राइट तो हर चीज का एक अपना बैलेंस है. मास्टरबेशन इज समथिंग, अगर आपके किसी दिन भर के कामों में कोई तकलीफ नहीं आ रही है और आप अपने आप को 1-2 बार दिन में टाइम दे रहे हो, कोई बात नहीं यार, प्लीज एंजॉय राइट योर सेल्फ. लेकिन आप अपने काम छोड़ के वही कर रहे हो तो देयर इज अ प्रॉब्लम, लाइक अ प्रॉब्लम एंड यू नीड अ काउंसलिंग. ट्रू एज सिंपल एज दैट. सो आई गेस वो लिमिट बांधना, वो बाउंड्री बांधना आपके ऊपर है. बट मास्टरबेशन इज नॉट रॉन्ग. सो ऐसी क्वेरीज काफी आती हैं, मतलब अच्छा बहुत सारी, बहुत सारी.
some कुछ तो मैं बोल भी नहीं अभी रख सकती. It's not something that I can say. आई एम Yeah. श्योर। Yeah. ये जो हम लोग की जो कंसल्टेशंस हैं, आर दे फ्री Hmm. और पीपल पे फॉर इट? People pay for it. The first consultation, which is of like 15 minutes, that is free. अच्छा। And if you are buying something from us, you get one free consultation any which ways from us. ओह वंडरफुल। Yeah. इनफैक्ट जब आप अभी मास्टरबेशन के बारे में बता रहे थे तो मुझे वापस से मेरे वो 11 12 के टाइम पे जो हम Hmm. लोग सेक्स एजुकेशन मिला था, आई थिंक दैट इज द राइट एज, क्योंकि सब लोग दे आर गोइंग फ्रॉम बॉयज टू मैन, व्हाटएवर यू वांट टू। Absolutely. Hmm. और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थे मास्टरबेशन को लेके, पीपल वर, क्योंकि यही सब है ना कि अरे इससे ये होता है, ये तो तुम्हारी मेंटल बीमारी है, बहुत Hmm. लोग क्या क्या बोलते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस, और सिस्टर ने इतने आराम से हमको एक्सप्लेन किया। शी वाज एक्चुअली अ नन, लाइक शी वाज वेयरिंग द होल थिंग। एंड मेरे लिए तो Hmm. सोच के ही लगता है कि सो अमेजिंग टू रिमेम्बर So समथिंग। amazing. Hmm. सो Yeah, India is having sex since the age of 14, if we करेक्ट। go by the data. And I guess this is one of the most important things that we should be telling our children how to navigate their sexual lives and their, health in terms of this. हम लोगों को मिस आउट कर देते हैं और वहीं पे सारा गेम हाथ से निकल जाता है. That's off. But I guess that will change and also changing now. तो आप लोग भी कुछ कर रहे हैं क्या सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड इन स्कूल्स? डू यू ऐसा कुछ आइडिया है दिमाग में कि ऐसा भी कुछ करना चाहिए? Absolutely है. In the category we are in right now, we can't sell anything in under the age of 21. हम्म। That's the boundary we have. हम्म। But we are working on the another channel in which we might get into like universities and schools where we're gonna teach about sex education as well. So वेरी this is गुड। in the plans. Yes, वेरी for हैप्पी। sure. Yeah. इंडिया नीड्स इट। Absolutely. So, as I said, that for us, एक अभी ना बीच में एक किसी फाउंडर ने ही बोला था अबाउट दिस सेक्स टॉयज कि मैंने अपनी 9 साल की बच्ची को ब्लिंकिट का एक्सेस दिया और यूपीआई का. तो उधर कुछ ऐसा है नहीं, जैसे सिगरेट्स के लिए आता है ना कि इफ यू आर अडल्ट और वट एवर, एक क्लिक ही हाँ। करना होता है उस पर. कोई केवाईसी कोड, मतलब कोई यू कोड तो है नहीं उसके ऊपर. यू जस्ट हैव टू करेक्ट। क्लिक यस ऑन इट, दैट्स हाउ यू एंटर. करेक्ट। तो उधर एक बात हुई थी कि 9 साल की बच्ची को भी आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द राइट एज हम्म। टू यूज अ वाइब्रेटर, नंबर वन, एज यू सिंपली टेल अबाउट सैनिटरी पैड्स, हम्म। so that your child knows and aware about all this. You are telling about good touch, bad touch, what is bad, what is not. You have to tell a child, 9 year old specifically, because the kind of internet access we have around us. If a 9 year old child can access to a UPI, a 9 year old child can access to anything, करेक्ट। right? So अगर आप उसे वो उतना बड़ा access दे ही रहे हो in terms of money management, let's say that, हम्म। right? You have to tell the child about this as well because money also comes with a lot of baggage, हम्म। right? It brings you a lot of things that can, oh, shall I order this? Shall I order that? You never know. So you have to inform your child about all of that. What is your right age to talk to me about this? And I will guide you myself about this. That should be like a responsibility of a mother with हम्म। a child out there. This is what I guess is changing and has to change as well. ओके। Yeah. दैट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज आई अगेन ये बहुत लोगों के दिमाग में भी क्वेश्चन आएगा जब वो ये सुनेंगे। तो Yeah. ऐसा नहीं है कि इट्स टू यंग, लाइक 9 years, Mm. क्योंकि आई रिमेम्बर पेरेंट्स आर वेरी केयरफुल ऑफ देयर किड्स, कि उनको क्या पता चल रहा है क्या नहीं पता चल रहा है। Mm. मेरा Mm. एक इनफैक्ट लंदन में आई हैव अ फ्रेंड, उसके उस वहां पे वो लोग हिंदू मुस्लिम ये सब भी बच्चे के सामने बात नहीं करते हैं। Yes. इवन शी इज देयर किड इज मोर देन 10 years old। तो ये तो सेक्सुअल जो टॉयज और ये तो बहुत ही अलग लेवल की बातें हो गई, जो आई डोंट नो, अगर बड़ी नौ सिंपल दस सी साल के बात है. लिए।
नहीं, मेरे लिए बहुत एक सिंपल सी बात है, मैं गलत भी हो सकती हूँ और डिबेटेबल है। द हम्म। पॉइंट इज, अगर आप सैनिटरी पैड के बारे में बात करोगे, वो तो आप करोगे ही, वो तो करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप गुड टच बैड टच के बारे में बात करोगे, आजकल के जमाने में आप, अगर आप किसी को भी पैसे का एक्सेस दे रहे हो इस उम्र के बच्चे को, तो आपको उसे बताना पड़ेगा सही गलत किस उम्र में क्या है। आपको नहीं पता वो उस पैसे से जाके कब कहाँ से क्या ले रहा है। When Blinkit kind of applications now have a system to delete the order as well, what you will do? Oh, okay. So there are a lot of things that can be, that are like debatable. Now the point is how, again same बात वहीं आ जाती है, वहीं वहीं हम वापस आ रहे हैं, the loop is same. आपको बात करना आता है क्या अपने बच्चों से? हम्म। Do you know the right words to speak with them? If not, there are counselors available. हम्म। Bring them to those counselors, help them understand this, and be safe. This is what the next thing should be, rather than you trying to like control your child. No, don't control, make them aware, and that's what it should be, because you can't stop internet Yeah. at Yeah, I last. mean, of course, parents are trying to buy different mobile phones and different tabs with, all these security features and stuff like that. Yeah, But I'm sure if not nine, maybe 12, maybe 14, there is a certain age when आप इस तरह की बातें कर सकते हैं, करना चाहिए, और absolutely, उस लैंग्वेज में absolutely. करना चाहिए जो शर्मनाक नहीं लगे, जो Frankly साइंटिफिक लगे. speaking, sexual health counseling for children starts at 5 years of age. अच्छा. Yes. So, or probably below that as well. ये शुरू हो जाता है, ओके. डिपेंड करता है बच्चे के माइंडसेट पर भी, राइट? सो ये शुरू क्यों हो जाता है? बिकॉज अगेन, गुड टच बैड टच से स्टार्ट होते होते एज एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन आती जाती है। करेक्ट, यहाँ करेक्ट. पे एक काउंसलर के ऊपर डिपेंड करता है कैसे उस बच्चे के माइंडसेट के अनुसार उसको फ्रेम करना है। समझा रहे हैं. बहुत ज्यादा डिपेंड उस चीज पर भी करता है। तो हमने मिस आउट किया, आई गेस। आई यू हैव बिन लकी, आई हैव बिन लकी, Karishma हम्म. has been lucky, my co-founder. I have, and I have heard a lot of people of my age who are not lucky, who have not understood bit about sexual health in their life or sexual pleasure in their life. They have just navigated through it. आज भी लोगों की शादियां होती हैं यार, खुद ही फिगर आउट कर लो ना तुम लोग, कर लोगे ना तुम लोग फिगर आउट? बच्चा हो गया, खुद ही फिगर आउट कर लोगे? नहीं, हम लोग हम्म. संभाल लेंगे, बच्चा कर लो, संभालने कोई नहीं आता। कोई नहीं आता. वही सारा एक लूप चलता रहता है। करेक्ट. So I guess it's all a part of that aspect, and we have counselors. So I really want to pass this to new parents कि अगर नहीं समझ में आ रहा है, सीधे सीधे काउंसलर के पास जाओ, अपना काम एग्जैक्टली, आसान करो और एग्जैक्टली. शांत रहो, टेंशन मत लो। लेकिन बात करो, बस शर्माओ बात मत. करो। यस, सबसे इम्पोर्टेंट. लोगों को ये भी लगता है कि अरे हमारी छोटी बच्ची है, हम किसी के सामने जाके क्यों बात करें. यस, यस। वो भी एक हैव यू हर्ड अ माइंड. चाइल्ड touching her vulva or penis in front of people? Have you heard or seen this happening? एंड पेरेंट्स बोलते हैं छी ये मत कर, छी छी ये मत कर, राइट? और प्रॉब्ली इचिंग हो रही है तो इचिंग कर दी, तो छी छी ऐसे मत कर, साइड पे जाके कर। वो छी छी जो है ना, वो बचपन का ही बड़े होके भी छी रह जाता है। राइट. समझ रहे हो? आप वो पूरे आपके मेंटल इनग्रेव कर लेते हो आप उसे कि ये ना छी है। अच्छी है. यू राइट. एंड तो फिर उसको वो छी क्यों नहीं है, करेक्ट, और वो छी कब है कब नहीं है, करेक्ट, वो सब बताना जरूरी है। करेक्ट. वो छी जनरली छी नहीं है. तुम उसको कहाँ यस, कर रहे हो, कैसे कर रहे कहाँ हो. कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ पे वो गलत है, करेक्ट, वो करेक्ट. बताना जरूरी है। यू राइट. या I think very interesting aspect, insight in fact. I hope हमारे सारे व्यूअर्स जो सुने उनको भी ये चीज समझ में आए and it helps them. आई होप सो, आई एग्री। So again, my one question is that अभी तो हम दोनों एक एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारी बैंडविड्थ मैच कर रही है, हम बहुत अच्छे से बात कर पा रहे हैं खुल के, और हम्म, ना मुझे हम्म, कुछ ऐसी शर्म है ना आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हम अच्छे से बात कर रहे हैं. बट जब आपने ये कॉन्सेप्ट सोचा होगा या किसी के साथ शेयर करना होगा कि यार मैं ऐसा कुछ करने का सोच रही हूँ अपार्ट फ्रॉम योर मदर, हम्म। उसके बाद में भी लॉन्च करने के बाद कुछ क्रिटिसिज्म ऐसा मिला या कुछ लोगों ने कुछ ऐसा कहा जो बहुत ही हार्श था या बहुत ही अनबिलीवेबल था, एंड हाउ डिड यू डील विद इट, कैसे अपने आप को फिर भी इंस्पायर्ड रखा.
मैं मैं फालतू बातों से डील नहीं करती हूँ हम्म आदित्य। मेरे को मतलब ही नहीं है। मेरे को अगर मैंने आईफोन है, कईयों को पसंद है, कईयों को नहीं है। हम्म मेरा बिजनेस है, बहुतों को पसंद है, थोड़े बहुत लोगों को नहीं है। आई रियली डोंट बॉदर अबाउट देम। जिस दिन उनका दिमाग खुलना होगा खुल जाएगा, वरना ऐसे कैसे ही हो जाएगा। आई रियली कांट हेल्प इट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प इंडियन ऑडियंस अंडरस्टैंड जितना भी वास्ट जा सकती हूँ मैं, अपने अपने वे से, अपनी लाइक कैपेसिटी के अनुसार। मैं कोशिश कर सकती हूँ कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ, उनके जिंदगी का एक पार्ट बन पाऊँ, उनके घरों में सासियस की चीजें हों। राइट। मैं वो चाहती हूँ। अब इसमें अगर कुछ लोग हैं जिनको वो चीज अच्छी लगती है, एज आई सेड, कहाँ हम्म से आ रहा है वी ऑल नो, हम्म नाउ एटलीस्ट। हम्म तो वो अगर अच्छी लगती है तो अच्छी लगे, अच्छी लगती है तो अच्छी लगे, उनके ऊपर। वेरी गुड, वेरी नाइसली सेड। इन द सेम थॉट, अगर आपको आपका ब्रांड के लिए कोई एम्बेसडर चूज करना हो, from हम्म। from the film industry, let's say, हम्म। or from, you can give me multiple names, but sports industry or film industry, who do you think that will be? Okay, so Karishma and I have been harping on Neena Gupta since very long. Can Good. you see how bold she Bold she is? is. She's amazing. And Yeah. apple of an eye for Gen Z as well, Yes. Yes. because she has become the true motivating factor for them, that okay, if she can be like this in this age, Yeah. I mean, is right example to talk about sex and health to Gen Z and to millennials and to every kind of audience. Hmm. As I like told you about that like 55-year-old like lady. Right. So Right. I guess that is where, so for us it's not about having a brand ambassador, Baba. मैं frankly बोल रही हूँ, we need hands, Hmm. minds. Hmm. And this business is not about having ambassadors. We are always in a belief of that if I am bringing certain amount of value, some person gonna come up and bring another amount of value, and this will keep growing and keep growing. So it's that. And if Army into this, if she becomes a part of the brand and becomes the voice, to choose to become a voice for us, we'll be more than grateful. Amazing. I think very well thought through. मेरे दिमाग में वो Yeah. नाम नहीं आ रहा था, मेरे को लग रहा था कोई तो Yeah. बड़ा नाम, कुछ यू विल थे से कुछ, बट आई थिंक नीना, आई डोंट मीन कि नीना गुप्ता नाम छोटा है, आई एम जस्ट सेइंग कि wonderfully fitting, because one, she's bindas, she's bold, No. Yeah. second, she's matured, so if Yeah. she says something, it has her own life's lessons. Value. तो ऐसा नहीं है कि कोई यंगस्टर आके आपको ज्ञान दे रहा है, देर इज Mm. पर्सन हुज लिव्ड हर लाइफ टू नो Yes. कि मैं सही बात तुमको बता रही हूँ। आई थिंक उस एंगल से, और जैसे वो हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत ही अच्छे से लोगों को समझा भी सकते हैं, जो भी समझाना Yeah. चाहिए। तो आई थिंक Yes. वेरी गुड, And वेरी we'll गुड। also get we'll also get Masaba along. No, we please. या I मे guess बी that Jodi mother daughter लवली duo जोड़ी, is या it's like आप घ- मैं अगेन वही बोल रही हूँ, you should one should feel like home when you're talking about brand. Today when you talk about Tata, you feel like home, यार. करेक्ट। You feel like home. You go to Taj, you buy a car, you do this. The customer service that they bring onto the table, right? It's something that makes you feel home. So that is what should be the aim. And I guess people of this age, like Nina Gupta, the kind of awareness they bring into the table for the world out there, it's matlab shayad my mom also needs to learn certain words from her to put it out there. राइट। It's that. I would राइट। say that. या मेरे दिमाग में भी मसाबा का नाम चल रहा था, बट मैंने वो लिया नहीं, बिकॉज आई सेड आई डोंट नो इफ आई शुड और नॉट,
बट यू नो, हम्म। आई होप कि किसी दिन सैसियस्ट का अपना एक फैशन शो हो, और आप लोग सब उसके शो स्टॉपर्स हो, और इट शुड जस्ट गो टू दैट लेवल. Amen. आई मीन, Please invite me for sure if it's a fashion. हाय, बिल्कुल बुला लूंगी, पहले कर हो जाए बस, ये ना हो जाए। नहीं नहीं, आई एम श्योर इट विल हैपन. गॉड ब्लेस. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज हम लोग मेडिकल वर्ड यूज कर रहे हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर प्रोडक्ट्स एंड, हम्म। आप लोग बैलेंस कैसे करते हो प्लेजर प्रोडक्ट्स, मेडिकल प्रोडक्ट्स, एंड यू नो द द लाइन बिटवीन देम, कि ये मेडिकली आपको चाहिए है या ये प्लेजर के लिए चाहिए है. हाउ डज दैट वर्क आउट? यार सैसिस्ट को ना कम से कम 1.5 साल लगा है ये फिगर आउट करने के लिए कि कौन सा प्लेजर मसाजर एक हेल्थ केयर इकोसिस्टम में फिट किया जा सकता है। हाँ, जिसको एक डॉक्टर भी ठीक है। ऑफिशियली प्रिस्क्राइब कर दे कि ये आप यूज करेक्ट, करो. करेक्ट, करेक्ट। तो उस चीज को बहुत वक्त लगा है उधर तक आने के लिए। और ऐसा नहीं है हर एसक्यू जो हम बेचते हैं वो डॉक्टर के लिए यूजफुल होता है। हम्म. ठीक है। हम हम्म. ये कह रहे हैं कि हम जो भी बेचते हैं वो एनाटॉमी के लिए सुटेबल होता है, नंबर वन। हम्म. कुछ ऐसे मसाजर्स हैं जो आपके हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं डॉक्टर के गाइडेंस के थ्रू। हम्म. वो सारे मसाजर्स नहीं है। ओके. ठीक है। So in this you can also put in that we are the only brand in India who has bought something for new moms out there as a massager to ओके. help them restart their sexual lives. ओके. तो ये कुछ चीजें हैं। तो हमारे पास ऐसे 2 SKUs हैं मेजर जो हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं डॉक्टर्स के गाइडेंस के द्वारा। और बाकी ऐसे हैं जो आ, आपकी एनाटॉमी में बिल्कुल ढंग से, फीमेल लाइक एनाटॉमी में ढंग से सूट करेंगे। आप ट्रस्ट करके बाय कर सकते हो। ओके. आपको डिससेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा वो बाय करने के बाद। आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने पैसे बहा दिए। राइट. ये है। वाओ. अमेजिंग. इनफैक्ट देयर इज देर आर वन और टू मोर क्वेश्चंस. इनफैक्ट एक क्वेश्चन जो मैं सोच रहा था वो ये था कि एज अ फाउंडर, यू नो हम्म। what, and this is a little on the lighter side, um, what what is the sassiest thing that you have done, or you want to share with our viewers? या मैं सच बताऊं तो मैं सैसियस थिंग केयर फ्री, मेरी लाइफ में ही मैं केयर फ्री हूँ। मैं Hmm. हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हूँ जिसमें मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं। जो मुझे करना है वो मुझे करना ही है। अब फॉर एग्जाम्पल जब सैसियस शुरू हुआ था, मैं शुरू कर रहे थे जब हम काम कर रहे थे, तो आई वॉज वर्किंग कैफे में बैठ के मैं काम करती थी। Hmm. बिकॉज पैसे तो है नहीं भाई, ऑफिस ऑफिस के लिए कहाँ कैफे में बैठ के काम करेंगे। Right. और मैंने सोचा फीडबैक भी चाहिए, डेटा तो कलेक्ट करना ही है। मैं रोड पे निकल गई, औरतों से बात कर रही हूँ। अच्छा. आई स्पोक टू मोर देन 100 women Oh wow. कि ये ब्रांड ऐसे ऐसे मैं लॉन्च कर रही हूँ, आपको पसंद आएगा क्या? Hmm. आप ऐसे ब्रांड को यूज करोगे क्या? आपको Hmm. लाइक वाइब्रेटर चाहिए? हम वाइब्रेटर को अगर मसाजर बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या? Hmm. तो ये सारे टैंजेंट मैंने पहले ही पता करके बैठी हुई थी मैं। बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट में बात तो चली रही थी। वी वर फर्स्ट फ्यू 3-4 ब्रांड्स, मतलब उस समय पे अच्छा. एक साल करके आ ही रहे थे ब्रांड्स। हम मेरे से अच्छा. 1 साल पहले एक ब्रांड और था। फिर मेरे साथ साथ ही एक ब्रांड और आया, उसके बाद मैं लॉन्च अच्छा. हो गई, मतलब हम लोग का ब्रांड लॉन्च हो गया। फर्स्ट 3-4 ब्रांड्स में हम लोग थे इन इंडिया। सो Okay. उस समय पर मैं रास्ते में बात कर रही हूँ भाई लोगों से, बिकॉज ऐसा हो गया था कि अब तो समझना ही है कंज्यूमर इनसाइट। Hmm. It's that. Right. And for me, the most sassiest thing, if you ask me, what I've done is launching sassiest for women whom I want to make carefree. I mean, what else that I can do? Yeah. It is the most sassiest thing that I've ever done, launching sassiest for women out there. Yeah. Awesome. Awesome. इनफैक्ट मुझे याद आया कि जब हम बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस बारे में आते हैं, और आपने बताया कि इट्स यूजुअली अबाउट पेनफुल सेक्स, Hmm. तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हो सकता है हमारा पॉडकास्ट देख के भी कुछ लोगों को और समझ में आए. तो Hmm. क्या रीजंस है जनरली पेनफुल सेक्स के, और उसको जनरली सॉल्व कैसे करते हैं?
whatever you can share. सो पेनफुल सेक्स के रीजंस मेंटल भी हो सकते हैं और फिजिकल भी हो सकते हैं। Okay. डिपेंड करता है, वो ट्रॉमेटिक भी होते हैं, वो एक मेंटल ब्लॉक भी होता है, और फिजिकल रीजंस भी होते हैं। Okay. Post childbirth, before that, or not able to have sex at all because of the anatomy structure to be of that sort. अच्छा. So women don't know how to handle it, frankly. हम्म. सो कभी कभार ऐसा होता है कि उन्हें पेन हो रहा है बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक विद देयर पार्टनर्स एज नहीं है. वेल कि हम्म. क्या हो रहा है। हम्म. सेक्स करते वक्त पेन हो रहा है, कभी कभी चुभन भी होती है, वो भी समझ नहीं आता क्यों होती है। सो हम्म. उसके बारे में जाके बात करना, चेक करवाना ही अपने आप में एक वो है कि छोड़ना। हमारी आदत होती है ना औरतों की, हम्म. छोड़ना चल रहा है ना, छोड़ना चल रहा है ना। राइट. अपने ऊपर तो ध्यान देना ही नहीं है, एंड देन जब तक वो लास्ट नहीं आ जाता ना कि करेक्ट. कुएं में पानी खत्म ही हो गया है, तब जाके अपना ध्यान आता है कि चलो अब हाँ. खोदना पड़ेगा वापस से पानी। तब हम्म. एक औरत अपना ध्यान रखने के लिए लग जाती है। सो आई गेस द द थिंग इज कि कभी भी अगर कुछ भी ऐसा फील हो रहा हो तो दैट पॉइंट इन टाइम उसको सॉल्व करो, ताकि बहुत देर ना हो जाए। हम्म. कभी वो बहुत कुछ और भी हो सकता है, किसी एक बहुत ही बड़ी अनहोनी की एक शुरुआत हो सकती है। तो आप पहले ही उसको देख लो कि क्या है भाई, क्यों दर्द हो रहा है मेरे को, क्यों हम्म. परेशानी हो रही है, क्यों जलन भी हो रही है, या क्यों मुझे इचिंग हो रही है, जाके पता करो क्यों हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है आपकी योनि, और अगर आप उसी को इग्नोर करोगे तो आप अपने साथ ही गलत कर रहे हो। कोई और नहीं, खुद के साथ बहुत गलत कर रहे हो। दिस इज व्हाट इट शुड बी। हाँ, बिकॉज जितना हम लोग बेसिक समझते हैं, हमको लगता है अगर पेन हो रहा है तो लुब्रिकेंट यूज कर लो, दैट इज द सिंपलेस्ट आंसर. बट मे बी दैट इज नॉट द ओनली सोल्यूशन. हो सकता है. एक आध बारी होना जायज है, हो भी सकता है, लेकिन अगर वो कांस्टेंट पेन है, बार बार हो रहा है आपको इंटरकोर्स के वक्त या फिर नॉर्मली भी, तो आपको जाके सीधा सीधा बात करनी चाहिए। राइट. बिल्कुल बात करनी चाहिए। ग्रेट. सो आई थिंक वन ऑफ माय लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर मैसेज उन लोगों के लिए जो सेक्सुअल हेल्थ कॉन्शियस हैं, या जिनके दिमाग में अभी सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो उनको लगता है कि उनको एक्सप्लोर करना है, बोथ फ्रॉम द हेल्थ पर्सपेक्टिव और फ्रॉम प्लेजर पर्सपेक्टिव. क्या बोलना चाहेंगे आप उनको? प्लेजर पर्सपेक्टिव सिर्फ इतनी सी एडवाइस है, नेवर चेज मेन फॉर women एंड फॉर men never chase women, never chase anybody in your life। हेल्थ पर्सपेक्टिव से ये बात है कि कभी भी कोई एक छोटा सा माइनर, से मैंने अभी बोला भी आपको, छोटी सी भी तकलीफ दिखती है आपको अपने इंटीमेट एरिया में, हम्म. आपको अपने अंदर, या फिर आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है बिकॉज ऑफ योर बॉडी, यू आर हम्म. नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई बिहाइंड इट हम्म. एंड लुक फॉर हेल्प। ओके. नेवर लेट इट गो, नेवर लेट इट सिंक इन, बिकॉज यू डोंट नो कितने सालों के लिए आप वो एक ट्रॉमा अपने अंदर डाल रहे या. हो, या. और वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप वो कभी निकाल भी पाओगे या नहीं, बिकॉज वो इतना अंदर दब जाएगा। एंड आई हैव बिन थ्रू इट। आई गेस करिश्मा विल ऑल्सो से द सेम थिंग, वी बोथ हैव बिन थ्रू इट इन बोथ ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। सो हम्म. अपने अंदर कोई भी बात को या कोई भी चीज को सिंक इन नहीं होने देना है, हमें सारी बात को बाहर निकालना है। वी नीड टू सीक फॉर हेल्प, हम्म. चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, आ, उसको हमें, चाहे वो सेक्सुअल हो, उन सारी बातों को वी नीड टू अंडरस्टैंड कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्यों है, let's solve it. The mindset should be let's solve this. अमेजिंग. आई थिंक यू वेरी वेल पुट इट, क्योंकि वेरी वेरी राइटली सेड कि जनरली ऐसा होता है कि वुमेन दे पुट देमसेल्व्स एज द लास्ट प्रायोरिटी, और Yeah, वो फिर एक वे ऑफ लाइफ हो जाता है कि चलो ऐसे ही चल रहा है, दिस दैट. तो आई थिंक प्लीज प्रायोरिटाइज योर सेल्व्स, प्लीज डू वॉट एवर इज नीडेड, जो आपके yeah, लिए भी अच्छा हो, आपकी फैमिली के yeah, लिए भी अच्छा हो. वो ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट, बट आप भी yeah, इम्पोर्टेंट हैं, और आप yeah, अपने लिए अगर कुछ कर सकते हैं, करना चाहिए, तो प्लीज वो फर्स्ट स्टेप लीजिए. yeah, एनीवेज, आपके लिए सैसियस जैसा प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है. अगर आपको कंसल्टेशंस चाहिए, यू कैन रीच आउट टू देयर कंसल्टेंट्स, एंड एटलीस्ट एक स्टेप तो ले सकते हो आप वहां से. फिर yes, वहां से फिर आपको पता चल सकता है कि ओके, अब मुझे आगे क्या करना है, या किसी डॉक्टर को दिखाना है, या व्हाटएवर, राइट. तो आई yeah, थिंक
try that please. Whoever feels like they have any concerns, अगर हमारा पॉडकास्ट देख के एक भी अगर जाता है या कॉल करता है, मेरे लिए वो बहुत बड़ा विन होगा. So मेरे लिए भी विन है. so thanks once again, Aishwarya. Thank you Thank so you much. so much for joining us. So guys, that was founder and CEO of Sassiest, Aishwarya, अपने bold and बिंदास अवतार में हमारे साथ में थी. I'm sure हमने बहुत कुछ सीखा है उनसे, और कोशिश करते हैं कि उसमें से जो जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें, अपने दोस्तों को बता सकें, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को. लेट्स डू दैट. और हम द MC आदि शो में आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट को लाते रहेंगे हर बार. देखते रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, और अपने दोस्तों को और अपने फैमिली मेंबर्स को भी सब्सक्राइब कराइए. थैंक यू सो मच वंस अगेन. दिस इज योर होस्ट MC आदि. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.